Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Respected students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today our lesson is different methods of election. Previously we discussed about also the methods of election, but their time we discussed first past the post system. تو سب سے پہلے میں یہ بولوں گا کہ کوئی کنٹری جو ہوتی ہے جہاں ڈیموکریسی ہوتی ہے وہاں الیکشن جو ہوتے ہیں وہ لازمی ہوتے ہیں. ان کے لیے ایک اتھارٹی ہوتی ہے جو ان الیکشنوں کا انعقاد کرتی ہے. ان کو پاورز ہوتے ہیں کہ وہ الیکشن کراتے ہیں اور اس میں جو میجارٹی پارٹی ہوتی ہے جو زیادہ ووٹس حاصل کرتے ہیں اس کو ڈکلیئر ونر کیا جاتا ہے, یعنی وہ الیکشن جیت جاتی ہے اور وہ گورنمنٹ فارم بناتی ہے, گورنمنٹ کو بناتی ہے. تو اسی حساب سے جو یہ ڈفرینٹ میتھڈز آف الیکشن ہے اس کا پہلا جو تھا اس کا ہم نے جو پریویسلی ہم نے ڈسکس کیا تو اس کو ہم نے بولا کہ فرسٹ پاسٹ دا پوسٹ سسٹم. یہ سسٹم ایک ایسا ہوتا ہے کہ ایک کنٹری کو ہم بہت سے ڈفرینٹ کانسٹیچوئنسیز میں تقسیم کر کے ایکول سائز میں تقسیم کرتے ہیں, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد ایسا ایک پروسیس آتا ہے جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں وہ اپنا جو نام ہے وہ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں, اور جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو کیا کرتے ہیں ووٹ ڈالتے ہیں. تو نیچرلی جس کو زیادہ ووٹ آتے ہیں یہ ڈکلیئر سکسیسفل قرار دیا جاتا ہے. تو اس سسٹم کو ہم کیا بولتے ہیں, اس سسٹم کو ہم بولتے ہیں فرسٹ پاسٹ دا پوسٹ سسٹم. اس سسٹم کو ہم بولتے ہیں فرسٹ پاسٹ دا پوسٹ سسٹم. ایک سسٹم ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہوتے ہیں جو ہر ایک جو ہوتا ہے کانسٹیچوئنسی جو ہوتی ہے اپنے جو نمائندہ ہوتے ہیں, نمائندوں اور کانسٹیچوئنسی جو ہوتی ہے اس میں تال میل ہوتا ہے. نمائندے اور کانسٹیچوئنسی کے درمیان جو تال میل ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے, تو جب لوگ اس کو ووٹ ڈالتے ہیں تو اس کو اپنی کانسٹیچوئنسی کے بارے میں پوری واقفیت ہوتی ہے. لیکن اب اس کے بعد ہم جو دوسرا اسٹیپ اٹھا رہے ہیں دوسرا ہے پرپورشنل سسٹم آف ریپرزنٹیشن. پرپورشنل مینز تناسب. سسٹم آف ریپرزنٹیشن مینز نمائندگی, یعنی اس کے حساب سے میں کیا ہوتا ہے جس کو جتنی نمائندگی ہونی چاہیے, جس کو جتنی نمائندگی ملنی چاہیے اس کو پرپورشن حساب کے پرپورشنل مینز تناسب کے حساب سے مل جاتی ہے. یہ ایک دوسرا سسٹم ہے. پہلا سسٹم جو ہے ہم نے ڈسکس کیا کہ جو ہم نے کیا کہ فرسٹ پاسٹ دا پوسٹ سسٹم, تو وہ ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا. اب نیکسٹ ہے پرپورشنل سسٹم آف ریپرزنٹیشن. پرپورشنل مینز تناسب, سسٹم آف ریپرزنٹیشن نمائندگی, یعنی نمائندگی میں ہم پرپورشن تناسب کے حساب سے ایک مطلب جو پارٹی ہوتی ہے اس کو تناسب کے حساب کے کتنا حصہ ملتا ہے اسی حساب سے اس کو دیا جاتا ہے. تو اس کو ہم بولتے ہیں پرپورشنل سسٹم آف ریپرزنٹیشن. ان پرپورشنل سسٹم آف ریپرزنٹیشن parties are represented in legislature in directly. تو کیا کرتے ہیں ڈائریکٹ ریپرزنٹیشن جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے ان پرپورشنل سسٹم آف ریپرزنٹیشن parties are represented in legislature in direct proportion of their overall strength. تو اس میں کیا ہوتا ہے جو لیجسلیچر ہوتا ہے, لیجسلیچر ہو گیا قانون سازی میں کیا کرتے ہیں جو پرپورشنل سسٹم آف ریپرزنٹیشن اس میں ڈائریکٹلی ان کو بھیجا جاتا ہے. In proportional system of representation, parties are represented in legislature میں in direct proportion, ان کو تناسب کے حساب سے ڈائریکٹ لیجسلیچر میں بھیجا جاتا ہے قانون ساز میں to their overall strength. جس پارٹی کو جتنی اسٹرینگتھ ہوتی ہے اس اسٹرینگتھ کے حساب سے اس کو ڈائریکٹ ہم لیجسلیچر میں قانون ساز میں حصہ دیتے ہیں پرپورشنل ریپرزنٹیشن کے حساب سے. Their percentage of seats equaling their percentage of votes. ان کی جو پرسنٹیج جو ہوتی ہے ان کی جو پرسنٹیج ہوتی ہے وہ ووٹوں پر درمدار ہوتے ہیں, یعنی جس پارٹی نے جتنے ووٹس لیے ہیں اس کو اسی پرسنٹیج کے حساب سے ہم یہ جو ہم لیجسلیچر میں پرپورشن سسٹم دیتے ہیں. پرپورشنیٹ میں اس کو تناسب کے حساب سے ہم لیجسلیچر میں اتنی سیٹیں دیتے ہیں. دیئر پرسنٹیج آف سیٹس ایکویلنگ دیئر پرسنٹیج آف ووٹ. جتنے وہ ووٹ حاصل کرتے ہیں اسی ووٹ کے حساب سے ان کو لیجسلیچر میں تناسب کے حساب سے حصہ ملتا ہے. Under such a system, a party would secure representation in proportion to the support it has among the electorates. اس حساب سے جو الیکٹوریٹس جو ہوتے ہیں جو رائے دہندگان ہوتے ہیں تو اسی حساب سے جب اس کو زیادہ ووٹ آئیں گے تو زیادہ ووٹ حساب کے سے اس کو زیادہ سیٹس ملیں گے لیجسلیچر میں,
अगर किसी को कम आते हैं उसको कम आते हैं। तो इस हिसाब इट है 2 टाइप, लेकिन ये जो है इसके 2 हिस्से होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, 2 अकसाम होते हैं। सबसे पहले क्या होता है लिस्ट सिस्टम, ये एक सिस्टम है, लिस्ट सिस्टम को बोलते हैं। Under list system, the entire country is considered as a single constituency, or it is divided into a large number multi-member constituency। इसमें क्या होता है, जो ये लिस्ट सिस्टम होता है, लिस्ट सिस्टम में यानी सारे मुल्कों को एक कॉन्स्टिट्यूंसी तस्लीम किया जाता है, या एक चीज़ को होता है कि इसको तकसीम करके मल्टी एक से जायद, एक दो या जायद जो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है उनको मिलाया जाता है। ये लिस्ट सिस्टम जो होता है, लिस्ट सिस्टम होता है कि एक जो कंट्री होती है, जो एक मुल्क होता है, या तो सारे मुल्क को एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी हम तस्वर करते हैं, या क्या करते हैं इसको हम तकसीम करते हैं, मल्टी एक दो मिलाकर कॉन्स्टिट्यूंसी में तकसीम करते हैं, मल्टी मेंबर। अच्छा, पार्टीज कंपाइल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस एंड द लिस्ट इज प्रेजेंट टू द वोटर। तो क्या पार्टी जो होते हैं ये एक लिस्ट बनाते हैं अपने कैंडिडेट्स का प्रेफरेंस के हिसाब से, तो क्या करते हैं तरजीह के हिसाब से ये एक लिस्ट बनाते हैं, और अपने वोटर जो उनके वोटर जो होते हैं उन वोटरों के पास वो भेजते हैं। क्या करते हैं ये करते हैं कि पार्टीज कंपाइल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर कहता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है यानी किसकी कारकर्दगी कैसी, उसी हिसाब से एक लिस्ट मरतब करते हैं, एंड द लिस्ट इज प्रेजेंट टू द वोटर, और वोटर के पास वो लिस्ट भेजा जाता है। पहले ये क्या करते हैं, ये जो बड़ी एक कंट्री होती है, या एक पहले कंट्री को एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी तस्वर करते हैं, या क्या करते हैं इसको ब्रेक करते हैं, डिवाइड करते हैं मल्टी कॉन्स्टिट्यूंसी में, कॉन्स्टिट्यूंसी 2 ही मिल जाते हैं उनको एक मतलब मल्टी कॉन्स्टिट्यूंसी में तकसीम करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं ये प्रेफरेंस के हिसाब से एक लिस्ट मरतब करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से, यानी किसकी कारकर्दगी कैसी है, तो उसके बाद उसको क्या करते हैं अपने वोटर जो होते हैं उनकी वोटर्स के पास वो भेजते हैं। वोटर्स इलेक्टोर्स जो होते हैं वोट फॉर पार्टीज, वो क्या करते हैं जो इलेक्टोर्स होते हैं या वोटर्स होते हैं वो पार्टी को क्या वोट देते हैं, नॉट फॉर कैंडिडेट, वो पार्टी को वोट देते हैं, कैंडिडेट को वोट नहीं देते हैं। पार्टीज आर एलोकेटेड सीट्स इन डायरेक्ट proportion to their votes they get in election। इस हिसाब से क्या करते हैं पार्टी को वो इतनी सीटें देते हैं जितने वो वोट इस इलेक्शन में हासिल करते हैं। तो उस हिसाब से क्या होता है जब इलेक्शंस होते हैं, जब वो एक लिस्ट मरतब करते हैं, एक जब प्रेफरेंस के हिसाब से वो तरजीह के हिसाब से एक लिस्ट बनाते हैं, और उस लिस्ट को एक डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर के बाद वो अपनी पार्टी जो होते हैं नुमाइंदे होते हैं वोटर्स के पास भेजते हैं, और जो वोटर्स होते हैं वो वोटर्स पार्टी को ये वोट देते हैं, कैंडिडेट को नहीं देते हैं। तो उस हिसाब से क्या साहब जितनी वो वोट्स हासिल करते हैं उसी प्रपोर्शन हिसाब से उनको इलेक्शन में दे गेट इन इलेक्शन, उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से पार्टीज आर एलोकेटेड सीट्स, उन पार्टियों को सीट्स एलोकेट की जाती है इन डायरेक्ट प्रपोर्शन के हिसाब से, डायरेक्ट तनासुब के हिसाब से टू द वोट्स दे गेट इन इलेक्शन। इलेक्शन में जितने वोट वो हासिल करते हैं उसी वोटों के तनासुब के हिसाब से उनको लेजिस्लेचर में नुमाइंदगी दी जाती है। तो ये हो गया फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर हम यहाँ करेंगे इफ द नंबर ऑफ वोट्स टू बी कास्ट 1 लाख एंड द सीट्स टू बी फिल्ड इज 10 देन द कोटा वुड बी। अगर हम एक चीज करेंगे कि एक जगह 1 लाख वोटर्स है लेकिन सीट्स कितने हैं 10 सीटर्स है, तो उस हिसाब से क्या करेंगे हम 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 10,000 वोटर्स। यानी इसका मकसद ये हो गया कि एक जगह ऐसी है लाइक फॉर इंस्टेंस एक ही किसी जगह इलेक्शन हो रहा है वहाँ 1 लाख वोट्स है, लेकिन 1 लाख वोटर्स जब वहाँ है लेकिन और सीट्स कितने हैं, सीट्स 10 सीटें हैं, तो 10 सीटों को हम क्या 1 लाख और 10 से हम डिवाइड करके 10,000 वोट आते हैं। इसका मतलब है कि वहाँ क्या करना है कि एक कैंडिडेट को 10,000 वोट हासिल करने, लेकिन उसके बाद क्या है
लेट अस एज्यूम, हम क्या करेंगे, देयर आर 3 पार्टीज, वहाँ 3 पार्टियां हैं, एक है एक्स, दूसरी है वाई और तीसरी है जेड, हैव स्टूड फॉर इलेक्शन। 3 पार्टियां आ गई, एक ऐसी जगह है वहाँ इलेक्शन होने वाले हैं, वहाँ 10 सीटें हैं, 10 सीटों को इलेक्शन हो रहा है। तो 10 सीटों को ये अगर 1 लाख के हिसाब से 10 कुछ दे तो 10,000 एक वोट्स एक एक कैंडिडेट को हासिल होते हैं। लेकिन क्या करेंगे हम, वहाँ जब करते हैं वहाँ 3 पार्टियां हैं, एक है एक्स, दूसरी है वाई, तीसरी है जेड, है स्टूडेंट, ये इलेक्शन में उड़ गए, 3 पार्टियां उड़ गई इलेक्शन में। तो क्या करते हैं, एक्स गेट्स 50,000। अब एक्स जो थी उसने इस लाख वोटों में 50,000 वोट्स ले लिए। वाई गेट्स 40,000, जो वाई जो पार्टी थी इसने 40,000 ले लिए। अब जो जड है, जड ने 10,000 वोट हासिल किए। इलेक्शन जो हो गया 10 सीटों के लिए, 1 लाख वोट्स थे। अब 10,000 वोट्स आते हैं, इसका जो कोटा देखेंगे वोटर के हिसाब से। लेकिन उसमें क्या होगा, एक्स वाई जेड जो थी 3 पार्टियां थी, एक्स ने 50,000 हासिल किए, वाई ने 40,000 हासिल किए और जेड ने 10,000 हासिल किए। तो ऑन द बेसिस ऑफ वोट क्राइटेरिया, जब हम क्राइटेरिया लगाते हैं वोट क्राइटेरिया के हिसाब से, तो वोट क्राइटेरिया हिसाब से क्या होना चाहिए, तो उसके हिसाब से क्राइटेरिया मीन्स मयार, क्राइटेरिया मीन्स मयार के हिसाब से हमें क्या करना है, हमें करना है एक्स वुड गेट 5 सीट्स। तो हमें इसके भी, इसने 50,000 वोट्स ले लिए, 50,000 इज गॉट, देयरफॉर वी हैव अलोकेटेड 5 सीट्स टू पार्टी एक्स। तो पार्टी एक्स को हमने 5 सीटें दे दी। तो इसी हिसाब से वाई जो है उसने 40,000 हासिल किए, तो उस हिसाब से हमने उसको 4 सीटें दे दी। एंड जो जेड जो था, जेड ने 10,000 वोट्स ले लिए, तो हमने जेड को क्या दिए, 1 सीट दे दिए, 1 सीट ले हो गए। सच ए सिस्टम एग्जिस्ट इन जर्मनी, ऐसा सिस्टम जो है, ये जो लिस्ट सिस्टम है, ये सिस्टम कहाँ चलता है, ये जर्मनी जो है कंट्री है, ये सिस्टम वहाँ ही चलता है, इसको बोलते हैं लिस्ट सिस्टम। इस लिस्ट सिस्टम में क्या होता है कि एक कंट्री जो है उसको पहले एक कंट्री को एक ही कॉन्स्टिट्यूशन तस्वर किया जाता है, या उसको मल्टी कॉन्स्टिट्यूंसीज में तब्दील करके जो एक मतलब एक हम लिस्ट बनाते हैं कैंडिडेट्स का अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस, तो उस हिसाब से उनको डिसीजन ऑर्डर में दिया जाता है, फिर वोटरों के पास दिया जाता है। वोटर जब वोट देते हैं वो पार्टी को वोट देते हैं, जब वो तो किसी कैंडिडेट को नहीं देते हैं। तो इस हिसाब से क्या होता है, जिसको जितने वोट्स हासिल होते हैं उसको उसी हिसाब से प्रोपोर्शनल हिसाब कैसे हम उसको उसी तनासब के हिसाब से हम उसको सीटें देते हैं। तो इस हिसाब से हम अगर ये कहेंगे फॉर इंस्टेंस कि एक कंट्री है वहाँ 1 लाख वोट से 10 सीटें हैं, तो उस हिसाब को अगर हम 1 लाख को डिवाइड करेंगे 10 से, तो हो गए 10,000 वोटर। जब हमारे 10,000 वोटर थे, इसमें 3 पार्टी आ गई, एक्स वाई और जेड। तो एक्स ने कितनी ले लिए, 50,000, वाई ने कितने ले लिए, 40,000 और जेड ने 10,000 ले लिए। तो इस हिसाब से, इस रेशियो हिसाब से हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से क्या करेंगे, हम जो है ये जो 50,000 जिसने एक्स ने ले ली, इसने 5 सीटें हमने इसको दे दी। जो ये वाई जो है उसने 4 सीटें हासिल की, जो जेड था उसको हमने 1 सीट दे दी क्योंकि उसने 10,000 ही ले लिए। सच ए सिस्टम एग्जिस्ट इन जर्मनी, ये सिस्टम जो है ये कहाँ सिस्टम चल रहा है, ये जर्मनी में चल रहा है।